तो एक बार फिर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल अपने आप के पास न्यूक्लियर बम होने का दावा करता है। इसराइल जो कुछ भी कहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक इसराइल ने यह भी नहीं बताया कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बम है। जब मौत आएगी तो न्यूक्लियर बम भी कुछ नहीं कर सकेगा। Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika, birlikte aldılar। जहां पर एक तरफ फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए सारी मुस्लिम हुकूमतें बेबस नजर आ रही तो दूसरी तरफ गैर मुस्लिम हुकूमतें, चाहे वो आयरलैंड रहने दो या स्पेन रहने दो, हर तरह की कोशिश करने के लिए गाजा के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर बार्सिलोना के अंदर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट करे और खास तौर से गाजा के मसलों को किस तरीके से सुलझाया जाए इस पर बातचीत की है। पूरे यूरोप के अंदर आयरलैंड और स्पेन दो ऐसे मुल्क है जो इस वक्त गाजा की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ तक के गाजा के लोगों के लिए लड़ने तक के लिए तैयार है ये गैर मुस्लिम मुल्क। तो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी अरब मुल्क के ट्रूप जो है गाजा नहीं जा रहे हैं एक भी, और ना ही वहां पर जाकर दुश्मन के साथ मुकाबला करने वाला है। ये कह रहे हैं कि सबसे अहम बात यह है कि जब कोई वहां पर जा ही नहीं रहा है तो फिर गाजा के फ्यूचर के बारे में बात करने से क्या फायदा है। क्या आपको खबर भी है कि लड़ाई के बाद गाजा बचेगा भी या नहीं? यानी कि सभी अरब मुल्कों की खामोशी इस बात का मैसेज है कि इसराइल को जो चाहे वो करने की इजाजत दे दी गई है गाजा को लेकर, और कोई भी इसराइल को रोकने की तक आवाज नहीं उठा रहा, ना उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। There'll be no Arab troops going to Gaza. None. We're not going to be seen as the enemy. And one very, very important thing, how could anybody talk about the future of Gaza when we do not know what kind of Gaza will be left once this aggression ends? So basically, by entertaining that, we're telling the Israeli government, do whatever you want. Go, destroy Gaza. Nobody is stopping you. And once you're done, we'll go clean your mess. No, we will not. If we want to talk about what should be done in Gaza in the future, we should stop the destruction of Gaza now. एक तरफ जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इसराइल से डर रही है तो दूसरी तरफ आवाम इसराइल के सपोर्ट में खड़ी है, फलस्तीन के लोगों के हक के सपोर्ट में खड़ी है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जिसको देख रहे हैं प्लेन में बैठा हुआ, इसका नाम कीर स्टारमर बताया जा रहा है। ये यूनाइटेड किंगडम का लेबर पार्टी का लीडर है। जब इसे लोगों ने प्लेन के अंदर देखा तो इसे सवाल किया कि आखिर फलस्तीन का कत्लेआम कब रुकेगा। How many more children in Palestine have to die before you call for a ceasefire? Over 7,000 children have died. Over 7,000 children have been slaughtered by Israel. This is unacceptable. What happened to human rights? What happened to democracy? We call for peace, we call for democracy. We don't see any of that when it comes to the Palestinians. 7,000 children, how many more have to die? 20,000 people, how many more people have to die? This is unacceptable. Where is your humanity? Sir, where is your humanity? Please don't touch me. Please do not touch me. I'm not doing anything wrong. Okay, I'm not doing anything wrong. This is I've paid for a ticket. I'm on the train. Transport, please. Keir Starmer, you are facilitating Israel's genocide in Gaza. Stop the killing of children. Stop the massacre of over 7,000 babies. Freedom for Palestine. Stop the genocide. You're responsible for killing babies in Gaza. You are responsible for killing babies in Gaza. Shame on you. Shame on you. Shame on you. तो इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान में रहता है उसे धमकी दी है और कहा है कि बेरूट जो लेबनान का कैपिटल है उसे हम गाजा की तरह बना देंगे, या नहीं तो खान यूनिस जिस तरीके से तबाह हुआ है उस तरीके से तबाह कर देंगे। कि אם חיזבאללה יבחר
לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. אנחנו נחושים להביא את הניצחון ונעשה את זה בעזרתכם. तो गाजा की सुरंगों में इसराइल ने समुद्र का पानी भरा है, 5 पंप लगाए हैं, कुछ ही हफ्तों में तबाह होगा 480 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क, ये इसराइल का दावा है। तो इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर इसराइल का अगला प्लान क्या है, क्योंकि इसराइल ने अभी तक एक भी वीडियो जारी नहीं किया है जहां पर उसने हमास के लड़ाकों से मुकाबला किया या उन्हें खत्म किया हो। तो हमास के खतरनाक टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए इसराइली सेना इसमें समंदर का पानी भरने जा रही है। इसके लिए साउथ गाजा में 5 बेहद ताकतवर पंप लगाए गए हैं। ये पंप पाइप के जरिए सुरंगों में पानी भरे ताकि हमास इसके बाहर ना निकल पाए और इनके अंदर ही घुट कर मर जाए। तो पहले नॉर्थ गाजा में इस चीज को इसराइल ट्राई करेगा, उसके बाद साउथ गाजा में भी ट्राई करेगा। ऐसे ही डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों में हमास का 480 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क तबाह हो जाएगा। हालांकि स्काई न्यूज के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री और टनल एक्सपर्ट इस प्लान को 2 बड़े खतरे बता रहे हैं। तो इसराइल के इस प्लान के खतरों के बारे में जानिए। अमेरिका के मिलिट्री एनालिस्ट माइकल क्लर्क ने जो है स्काई न्यूज से बातचीत में इस प्लान को कारगर तो बताया, लेकिन इसके साथ ही 2 खतरों की तरफ इशारा भी किया है। क्लर्क के मुताबिक पहला खतरा तो यही है कि अगर टनल नेटवर्क में समंदर का पानी भरा गया तो इससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और वहां का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। हमास ने शायद बंधकों को भी वहीं कैद किया है। ऐसे में इनकी जान कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्लर्क दूसरे खतरे के बारे में भी आगाह करते हैं। उनके मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी भरने से सुरंगों में मौजूद लोग के सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो वो मारे जाए या इससे पहले वो वहां से बाहर आ जाए। लेकिन नेचर के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। क्लर्क आगे कहते हैं कि इसराइल के इस तरह गाजा में भी सी वाटर फिल्टरेशन प्लांट है। इसराइल की यह टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए मिसाल होने के साथ ही बेहद शानदार और कारगर होगा। हो सकता है कि टनल नेटवर्क के अंदर साफ पानी की सप्लाई इसी नेटवर्क से होती है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्टरेशन प्लांट यूनिट बंद हो जाएगा और इसका असर गाजा में आम लोगों पर भी पड़ेगा। दिमागी जंग में जीतने का तरीका। प्रोफेसर क्लर्क इस मामले को एक नए नजरिए से भी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि इसराइल की फौज और सरकार अब हमास के साथ साइकोलॉजिकल वारफेयर भी जीतना चाहते हैं और इसीलिए सुरंगों में पानी भरने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसराइल गाजा के लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि हमास का साथ छोड़ दे, क्योंकि इनके खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर ये एक शहर की तरह है। घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, कार्यालय दिखते हैं, लेकिन गाजा की जमीन के नीचे हमास की एक अलग दुनिया भी है। हमास का दावा है कि उसने करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट किसी को नहीं पता है। मुमकिन है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमलों में हमास ने ऐसे किसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा। बस ये सिर्फ दावे है, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हमने और आपने 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके से हमला किया, साफ देखा है कि वो खुले तौर पर इसराइल के अंदर घुसे हैं सभी के सामने। तो इन सुरंगों के जरिए ही गाजा के लोगों को आने जाने की भी आजादी थी। खास बात यह है कि एक वक्त लोगों को जाने के लिए टिकट सिस्टम भी बनाया गया था। हालांकि जब इसराइल ने कार्रवाई की तो ये सिस्टम उतनी ही तेजी से खत्म हो